नमस्कार साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। एक मैं आपको लेटर सुना रहा हूँ जो मैंने आज भेजा है इनको अथॉरिटीज़ को, कि चेयरमैन IBA, DFS और फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर लोकसभा आदि को, और भी लोगों को भेजा है लेकिन इनको मुख्य रूप से भेजा है। और मैं एक दो दिन में इसी को इनको UFBU लीडर्स, रिटायरी लीडर्स और दूसरे लीडर्स जो हैं छोटे छोटे संगठन, उन सबको भी कुछ को भेज भी दिया मैंने। लीडर्स को तो खैर मैंने भेज दिया ये सारा, एक बार फिर इनको मेल के माध्यम से भेजूँगा। व्हाट्सएप वगैरह से सबको भेज चुका हूँ मैं पहले, और इनको आज मेल से भेजा है मैंने। एक बार ये लेटर आपको पढ़ देता हूँ। From R.K. Tyagi's desk, retired Central Bank of India, Ghaziabad, dated 6th October 24, to Chairman IBA, DFS, Finance Minister, Prime Minister, and all other concerned authorities regarding pension updation, special allowance issues, gratuity recalculation issue, medical health insurance issue, commutation recovery, and unmarried divorced widowed daughter's whole life pension about 25 years, negotiation with retirees leaders, etc. Reference our previous letters, mails, others communications, meetings, etc. Sir, please consider own priority as under. Number 1, it's requested to all the concerned to solve our pension updation issue as per BEPR 1995 35.1 Appendix 1 Memorandum 1993, under which we gave option of pension, small committee meeting, RBI pattern / RBI lines, central government employees pension regulations as per NABARD. It's 30 years long pending issue. Please solve it. Number 2, without removal of special allowance anomaly with effect from 1st November 2012, retirees, it's incomplete. Pension updation will be completed after solving this issue, which is affecting more than 75 retirees of total pensioners. It's introduced by UFBU and IBA caucus in 10th phase revision. Joint note, 9th joint note, with malified intention limiting our pension now up to 35%. उस टाइम इन्होंने 42-43% कर दी थी, अब इसको 35% कर दिया। फ्रॉम 50% एज ऑफ नाउ इन वेज रिविजन 2012 से शुरू किया था यह सिलसिला, और 22 तक आकर के 35% हो गई है पेंशन 50% से। इट्स रॉन्ग to say that it is sub judice. Every issue is sub judice and it's no bar to settle the issue. Can't stop to be solved. Family pension, DA merger, pension updation, all are sub judice. Number 3rd point है, gratuity recalculation issue should be solved as per Nainital High Court's double bench judgment, ALC DLC decisions. Take up it now and decide judiciously. Number 4th है, medical health insurance premium for 5 lakhs is very costly. सुपर टॉपअप का प्रीमियम है जो इन्होंने इतना महंगा करा है। 460K 60,000 का, and can't be affordable. Bank should bear it and it's against the top up of any other policy premium and practices. 5th, commutation recovery period should be stopped after 9 years 10 months deduction as it's being recovered at higher rate. There is no interest factor in it. ये कई बैंकों ने RTI में बताया है। 6th इशू है, द इशू ऑफ अनमैरिड डाइवोर्स एंड विडोज डॉटर्स होल लाइफ पेंशन बियॉन्ड 25 years as per government sector and Supreme Court guidelines should be implemented in banks. Number 7th, negotiation should be done with retirees leaders and not with UFBU leaders on our issues, because UFBU leaders don't represent us and who works against our interest. तो उनसे ना करें, बात करें रिटायरी लीडर्स, सीनियर एक्टिविस्ट। सीनियर एक्टिविस्ट का मतलब, जैसे सीनियर एक्टिविस्ट 2 हैं, तो पेंशन अपडेशन वाले पुराने और एक 2012 के बाद वाले सीनियर एक्टिविस्ट और सीनियर लीडर्स। डोंट रिप्रेजेंट अस
जो UFBU के लीडर्स हैं वो रिप्रेजेंट नहीं करते, हु वर्क्स अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट। प्लीज़ टेक अप एंड सोल्व अवर ऑल above issues at an earliest. Please, on issue of special allowance, don't hear senior pensioners' views who are collectively against solving this issue, whether these are activists or leaders. Some union leaders are involved in sidelining special allowance issue and gratuity recalculations. Thanks and regards, आर के त्यागी, गाजियाबाद। तो साथियों, एक तो ये पत्र था मैंने लिखा, और एक इसकी कॉपी जो है मैं इनको कर रहा हूँ, जितने भी ये हैं अपने ये UFBU लीडर्स, रिटायरी लीडर्स, आईवा पार्क, CBPRO, UFBRO एंड अदर रिटायर्ड लीडर्स हैं, इनको भी इसकी कॉपी कर रहा हूँ, ताकि ये भी इस पर जो भी ये कर सकते हों करें, नहीं कर सकते तो इनकी इच्छा है, हम तो लिखेंगे और कहेंगे अपनी बात। तो ये हमारा का ये जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है साथियों। और सभी से मेरा निवेदन है कि सभी जो है किसी सीनियर रिटायरी, सीनियर लीडर, सीनियर एक्टिविस्ट के बहकावे में ना आए। और पेंशन अपडेशन को वो कह रहे हैं कि भाई पेंशन अपडेशन और हेल्थ इंश्योरेंस का 2 इशू करेंगे, बाकी को नहीं। भैया 2012 के बाद वालों को 500, 1000, 1500, 2000 ही बढ़ते हैं पेंशन अपडेशन में, और हमारा जो स्पेशल अलाउंस में उसमें 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ रहा है नुकसान। तो वो आप लोग ने कहा, अब तुम ये कहते हो कि जी जब आप नौकरी में थे तब क्यों नहीं उठा रहे? भाई तब हम उठाते थे इस को, कितने बार लीडर से उन्होंने कहा ठीक करवाएंगे, और नकार खाने में तूती की आवाज़ हमारी हो गई वहाँ। और 17 से पहले हम, नवंबर 17 से पहले हम रिटायर हो गए। तो उस टाइम जब कहा तो उतला तुम हमारे मेंबर नहीं हो, तुम तो मेंबर उसके हो रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने बात करनी छोड़ दी हमसे। हमने तो वेंकटचलम से भी अनेकों बार झड़प की, संजीव बंदलिस से भी अनेकों बार झड़प की, पुराने जो आईबोक के जनरल सेक्रेटरी सोमा दत्ता उनसे अनेकों बार बात की, और अभी भी हम इनसे रूपम राय जी से हैं जो जनरल सेक्रेटरी आईबोक के, इनसे भी बात करी। नोवो और NOVW वालों से कई बार मिल लिए, बात कर ली, मीटिंग कर ली। गिरीश आर्य जी BMS के जो हैं वो नेशनल सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्टर के, उनसे रामनाथ कीनी जी सह प्रभारी, उनसे अनेकों बार बात कर ली। इनकी सभी हमने उनसे बात कर ली। हमने इनसे ये भी कहा हमें फाइनेंस मिनिस्टर से मिलवाओ या स्टेट MOS से मिलवाओ, इन्होंने हाँ भी कहा। एक बार मीटिंग में बुलाए थे हम इन्होंने, और उसके तुरंत बाद MOS के पास गए थे फाइनेंस के, लेकिन हमें ले करके नहीं गए थे, हमसे इशूज़ ले करके, और वहाँ भी इन्होंने स्पेशल अलाउंस का मुद्दा नहीं उठा था। हमने इनका मेमोरेंडम देखा था, जबकि पहले ये उठा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें, और इसका कारण है सीनियर कुछ रिटायरी हैं, जैसे ये मैंने आपको कई वीडियोस में बताया और शेयर भी किए, बार बार नाम अच्छा नहीं लगता लेना। तो ये कुछ लोग हैं ऐसे, और ये कुकुरमुत्ते जैसे कुछ संगठन भी आ गए हैं, इनके जनरल सेक्रेटरी भी इस काम को कर रहे हैं, प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी भी। और अभी मेरा 27/9/2024 में जो 27 सितंबर में धरना हुआ था UFBRO का, वहाँ भी जो है वहाँ उनके स्टेट, दिल्ली स्टेट के जो स्टेट सेक्रेटरी हैं, नाम बार बार क्या लूँ, और जो मंच का संचालन कर रहे थे, और जो जिन्होंने आहूत किया था धरना, जिनका कहना था मैंने ही आहूत किया धरना, उन्होंने लगातार जो उनसे मेरी तू मैं वो भी बहुत हॉट डिस्कशंस हुए इन बातों को लेकर के, स्पेशल अलाउंस के मुद्दे, ग्रेजुएटी रिकैल्कुलेशन मुद्दे को लेकर के। और SC जैन है, श्री SC जैन जी, जो उसके कन्वीनर हैं UFB और AIBFR के जनरल सेक्रेटरी, उनसे भी मैंने ज़बरदस्ती उसको करके और उसको उठवाया। पहले उठाना था, बाद में उन्होंने कंक्लूडिंग में इस मुद्दे को उठाया, और मैंने कहा भाई इसको लिखे और इसको वो करें। वो कह रहे थे मित्र वासु जी की प्रायोरिटी में वो नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है इसकी। तो मैं भी इसी में हूँ, 12 के बाद कह रहे भाई तुम तो नेता हो, पता नहीं क्या क्या करते हो, क्या क्या लाइजन है तुम्हारे, हम तो पेंशन के भरोसे हैं, तो हमारे इतना नुकसान हो रहा है, तो मतलब उसमें काफ़ी वो होगा। तो वो मैंने आपको शेयर भी किया था मामला। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कोर्ट में हम सभी मुद्दों पर हैं, मैंने आपको बता ही रखा है। चाहे दिल्ली हाई कोर्ट में भी हम हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमें रेस्पोंडेंट बनाए इन सारे इशूज़ को, दिल्ली हाई कोर्ट में हम हैं तमाम इशूज़ को लेकर, चाहे स्पेशल अलाउंस पर पेंशन कैलकुलेशन हो और पेंशन अपडेशन हो, चाहे ग्रेजुएटी रिकैल्कुलेशन हो स्पेशल अलाउंस पे, DA पर 26 दिन और 30 वर्ष से ऊपर 1.5 माह की प्रतिवर्ष ग्रेजुएटी, ये सब चीज़ों पे हमें, और इंटरेस्ट वगैरह उसमें हमने 18% इंटरेस्ट भी क्लेम कर रखा है। और
इसके अलावा और भी मुद्दों पर हमें और कॉम्पिटिशन का हमारे साथियों ने केस लगा दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में तो अभी नहीं लगा, हमने कुछ लोगों से बात कर रखी है, वो लगाएंगे, लेकिन अभी तैयार नहीं हुआ। लेकिन लखनऊ में हमने लगवा दिया है, सेंट्रल बैंक के साथियों ने लगा दिया है उसमें, और कैनरा बैंक के साथियों के साथ हमारे साथियों ने लगा दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हमारे ही केस हैं वो दोनों। और भोपाल में भी लगने की बात चल रही है, और भी दूसरी जगह कुछ लोगों ने लगाया। चंडीगढ़ में सेंट्रल बैंक वालों ने लगाया और दूसरे बैंक वालों ने भी लगाया कॉम्पिटिशन के ऊपर। तो ये सारे चीज़ें धीरे धीरे आएंगी, जैसे भी आएंगी, चल रहे हैं उनमें, और मेरी लगातार इन सब संबंध में बात होती रहती है और मैं आपको अपडेट भी करता रहता हूँ। 14/11 में हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के 2 केस होंगे स्पेशल लोन्स पर, पेंशन कैलकुलेशन और पेंशन अपडेशन, एक तो ये, और ग्रेजुएटरी कैलकुलेशन एज पर LCDLC एंड नैनीताल हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसके ऊपर, ये 14/11 में, और बाकी 2 केस और हैं। और सुप्रीम कोर्ट का अक्टूबर में ही हमारा नंबर आएगा, उसमें डेट है हमारी उसमें। और सिंगला वाले का अभी कुछ पता नहीं, जो भी डेट होगी वो जैसे ही आएगी, 2 दिन पहले पता लगा आपको बताएंगे। कंप्यूटर पे डिजिटल जो आती हैं गलत होती हैं। धन्यवाद साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आर के त्यागी, गाजियाबाद, ओम नमः शिवाय, थैंक्स। 8588898205 आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और सहयोग ले सकते हैं, और सहयोग जो भी आप वांछित हो दे सकते हैं। थैंक्स।